Hello students, today we will continue the same chapter electricity. ठीक है जी, this is the first part, this is the fifth part of this chapter. ठीक है, ਇਹ fifth part है. First four ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ topic ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ resistance ਵਾਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ, previous video ਦੇ ਵਿੱਚ factors depends on the resistance ਇਹ ਆਪਾਂ topic ਕਰ ਲਿਆ. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ resistance of a system of a resistors. ठीक है, resistance बारे पढ़ चुके हैं, resistor बारे पढ़ चुके हैं. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ. ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਹਾਊ ਦੀ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇਟਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਇਟਸ ਐਂਡ पोटेंशियल डिफरेंस बारे भी पढ़ चुके. ठीक है, इन वेरियस इलैक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज़ द रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बीनेशंस. रजिस्टर का भी आप वेरियस यूज़ किया. ठीक है, कॉम्बीनेशंस दे विच वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाई टू द कॉम्बीनेशन ऑफ द रजिस्टर्स. हुण अज आपां की ओम्स लॉ बारे पढ़ चुके. हुण अज आपां की पढ़ना कि ओम्स लॉ नूं आपां जदों कि कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टर लवांगे आपां. ठीक है, रजिस्टर्स ਜਿਹੜੇ कॉम्बीनेशन है उत्थे ओम्स लॉ किवें अप्लाई करदा वो अज आपां की देखांगे इस वीडियो दे विच. देयर आर टू मैथड्स ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर. इत्थे कि रजिस्टर्स नूं जॉइन करन दे दो मैथड ने. वो किहड़े-किहड़े आ देखो. Figure 12.6 shows an electric circuit in which three resistors having resistance R1, R2, R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in the series. दो मेथड ने, एक है पैरेलल कॉम्बीनेशन है, दूसरा की सीरीज कॉम्बीनेशन है. पहला आपां की है सीरीज कॉम्बीनेशन बनाएंगे. हुण 12.6 फिगर है उहदे विच की तीन रजिस्टर्स नूं की जॉइन किया गया. उत्थे की रजिस्टेंस R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स ने जिन्हां दी रजिस्टेंस की एक पहले रजिस्टर दी R1 है, दूसरे दी R2, तीसरे दी R3 रजिस्टेंस है. इन्हां नूं जॉइन किया गया सीरीज़ दे विच. ठीक है, तो अगे आपां देखने हैं तो ये की हो गया सीरीज़ कॉम्बीनेशन हो गया. ठीक है, देखो आ वाला है, देखो तीन रजिस्टर यूज़ किए गए नहीं. ठीक है, पहले दी रजिस्टेंस R1, दूसरे दी R2, तीसरे दी R3 इन्हों सीरीज़ दे विच की है कंबाइन किया गया. ठीक है, पहला मैथड किता ये हो गया. ठीक है, एम मीटर अपन पता है सीरीज़ दे विच हुंदा, वोल्ट मीटर पैरेलल, प्लग की है तो इत्थे की है बैटरी यूज़ की गई है. तीन सैल्स ने बैटरी दे विच. ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन दे विच. ठीक है, नैक्सट है फिगर 12.7. ठीक है, shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between x and y. Here the resistors are said to be connected in parallel. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ. ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ. ਇੱਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, दूसरा की है पैरेलल कॉम्बीनेशन. ठीक है जी, दो कॉम्बीनेशन है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼. ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਸਰਕਿਟ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ देयर ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ. ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ these with the help of following activities. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੜਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, join three resistors of different values in the series. ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਨੈਕਟ them with the battery, ammeter, plug की. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 6 volt ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਦੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਐਮੀਟਰ. ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਹੈ. ठीक है, इस तरह की सर्किट है.
ठीक है, ये वाला, ठीक है, पहले दी 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक है, ये वाला सर्किट है। हुण आपां की कीता, हुण आपां की करना पोजीशन, देखो एमीटर दी पोजीशन की सी पहले इत्थे सी, हुण आपां एमीटर दी पोजीशन नूं चेंज करके देखांगे कि करंट ते कोई इफैक्ट पै रहा या नहीं पै रहा, ठीक है। हुण की कीता, चेंज दी पोजीशन ऑफ द एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स, हुण जिहड़े हुण रजिस्टर्स ने उन्हां दे विचकार आपां की उहदी पोजीशन चेंज कीती एमीटर दी, फिर आपां रीडिंग चैक कीती, ठीक है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द एमीटर, फिर आपां हुण देखांगे ये एक्टिविटी परफॉर्म कीती जदों लैब दे विच, ठीक है। तो उत्थे आपां की करांगे कि ऑब्जर्वेशन करांगे, देखो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज सेम। हुण आपां उहदी पोजीशन चेंज कीती बट आपां नोट कीता कि एमीटर दे विच करंट दी वैल्यू तो सेम ही है थ्रू आउट द सर्किट, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलैक्ट्रिक सर्किट, तो उहदी पोजीशन जिहड़ी की है उहदे नाल कोई इफैक्ट नहीं पै रहा करंट दे उत्ते। इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच एमीटर दी पोजीशन नूं किते मर्जी रखो, करंट दी वैल्यू सेम रह रही है, ठीक है। इट मीनस दैट इन अ सीरीज कंबीनेशन ऑफ द रजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। इस तो आपां नूं यही पता चलिया कि सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच करंट दी वैल्यू थ्रू आउट दी सर्किट की है सेम रह रही है, ठीक है। हर एक रजिस्टर दे विच सेम करंट दी वैल्यू की कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। हाँ जी, कॉम्बीनेशन ऑफ रजिस्टर्स आपां नूं करंट दा तां पता चल गया, हुण आपां वोल्टेज दा देखते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड XY, हुण आ XY जिहड़ा कनैक्ट जिहड़ा की हैगा दिता होया अक्रॉस दी वोल्टमीटर जिहड़ा XY एंड है, हुण उत्थे आपां की है कॉम्बीनेशन करना रजिस्टर्स दा R1 R2 इन्हां नूं की कंबाइन कीता तीन रजिस्टर्स नूं, ठीक है। प्लग दी की इन दी सर्किट नोट दी वोल्टमीटर रीडिंग, हुण आपां इन्हां नूं की तिन्नां नूं की है कनैक्ट किया तो हुण आपां की है इहदी की रीडिंग चैक करांगे। पहला आपां वोल्ट डिफरेंटली नहीं लगाए, एक इन सारियां दा की एक वोल्ट मीटर लग्या होया पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच, ठीक है, सिर्फ एक लग्या होया तो पहला आपां की उहदी रीडिंग चैक की, ठीक है। सिंपल की कीता आपां प्लग दी की इन दी सर्किट दे विच प्लग की कीती, ठीक है। नोट द वोल्टमीटर रीडिंग, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज ऑफ द कॉम्बीनेशन ऑफ द रजिस्टर, लैट इट बी बी, ठीक है। हुण आपां की अक्रॉस सारे दे विच चैक कीती तो उहनूं आपां की मान लैंदे वी पोटेंशियल उहदे विच की है वेरी कर रहा है, ठीक है, वी potential. Now measure the potential difference across the two terminals of the battery, compare the two values. हुण आपां की करना है, हुण हर एक रजिस्टर दे उत्ते चैक करांगे वोल्ट। पहला आपां की पूरे सर्किट दा एक वोल्ट मीटर लगा के उहदी की वैल्यू चैक की, लैट इट बी बी, उहनूं आपां वी मान लैंदे हैं, ठीक है। फिर आपां की इंडिविजुअली रजिस्टेंस जिहड़े रजिस्टर लगे हुए उन्हां दी देखांगे। टेक आउट द प्लग की एंड डिसकनैक्ट द वोल्ट मीटर, इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एक्स एंड पी। हुण आपां वोल्ट मीटर पहला की अक्रॉस दी एंड लगाया सी, इत्थे लगाया सी, हुण आपां एक्स ते पी दे विच वोल्ट मीटर लगावांगे ते उहनूं आपां मान लैंदे हैं लैट इट बी V1, उहदी वैल्यू कितनी आई V1 आई। फिर आपां की दूसरे दे उत्ते करांगे, उहनूं आपां मान लैंदे हैं V2। फिर आपां तीसरे दी करांगे वोल्ट मीटर चैक तो उत्थे आपां V3 मान लैंदे हैं। फिर आपां ऑब्जर्व की कीता, देखो ऑब्जर्वेशन की आई, देखो ऑब्जर्वेशन की हुई, यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। हुण इत्थे आपां ऑब्जर्व की कीता, जिहड़ी आपां की है इत्थे XY एंड ते वोल्ट मीटर लगाया सी, उहनूं आपां V मन्निया सी, तां आपां इत्थे की कीता जिहड़ी V आई है, ठीक है। हुण जिहड़ी आपां इंडिविजुअली रजिस्टर्स दे उत्ते की पोटेंशियल देखी सी, उहदा की आया सम ऑफ V1 V2 V3 है ना। दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। तो इत्थों आपां नूं की मिली, ये ऑब्जर्वेशन मिली, ठीक है, कि जिहड़ा V1 सारे थ्रू आउट द सर्किट दे विच V जिहड़ा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सीगा वो इक्वल टू आया इंडिविजुअल रजिस्टर्स दे उत्ते जदों आपां चैक कीती, उहदे की है सम ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस की है इक्वल आया, ठीक है। इन द इलैक्ट्रिक सर्किट शो दिस figure in 12.8, let I be the current through
दी सर्किट। हुण आपां नूं ये तो पता चल गया कि सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच आई करंट फ्लो कर रहा है तो थ्रू आउट दी सर्किट की सेम रहिंदा है, ठीक है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई, तो हर एक रजिस्टर के उत्ते भी आई करंट ही फ्लो करूगा, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज बाय इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस इट एंड द करंट आई थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। हुण आपां इत्थे की देखना है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये पॉसिबल हो सकता है कि ਜਿਹੜੇ 3 रजिस्टर्स लगाए ने उन्हां दी आपां इक्विवेलेंट रजिस्टेंस एक सिंगल रजिस्टेंस दे नाल उहनूं रिप्लेस कर सकते हैं। वो रिप्लेस कदों करांगे जदों उहदे विच पोटेंशियल डिफरेंस बी होवे अक्रॉस थ्रू आउट दी सर्किट ते करंट की है आई फ्लो करता होवे ते वो सर्किट थ्रू आउट दी सर्किट की है रिमेन सेम, ठीक है। अप्लाई द ओम्स लॉ टू द इंटायर सर्किट। जिहड़ा आपां ए वाला सीगा हुण इत्थे आपां की ओम्स लॉ अप्लाई करांगे ते ओम्स लॉ की सीगा V इज इक्वल टू आई आर। हुण देखो V इज इक्वल टू आई आर सी ना। हुण आपां पहला रजिस्टेंस जिहड़ा सीगा R1 ते वोल्टमीटर आपां लगाया सी V1, ठीक है। उत्थे आपां देखांगे उत्थे अप्लाई करांगे ओम्स लॉ तो की आऊगा V1 इज इक्वल टू R1। फिर आपां सैकेंड दे उत्ते लगावांगे R2 तो उत्थे की आपां V2 लगाया सी वोल्टमीटर, ठीक है। मन्निया सी कि V2 आई है तो V2 इज इक्वल टू IR2। फिर थर्ड दे उत्ते लगावांगे V3 इज इक्वल टू IR3। हुण आपां जदों कि सर्किट दा आपां देखिया सी तां ओह किन्ना आया सी, जिहड़ी टोटल वोल्टेज है वो की इंडिविजुअल रजिस्टर्स दे वोल्टेज दे की बराबर आया सी, ठीक है। उन्होंने दे सम दे बराबर आया सी। तो हुण इत्थे आपां की वैल्यू पुट कर देंगे V इज इक्वल टू IR, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, ठीक है। फिर हुण आपां की मन्निया इत्थे की है आई है जिहड़ा वो सेम करंट की फ्लो किया थ्रू आउट दी सर्किट, तो आई नूं आपां की लवांगे कॉमन लैके की है वैल्यू की कट्टी जाऊगी तो अपने कोल की आ जाऊगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक की है सीरीज़ दे विच की है resistance दा की combination है, ठीक है। We can conclude that when the several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equal to the sum of their individual resistance R1, R2, R3 and thus is greater than any individual resistance। देखो इत्थों आपां नूं की पता चलिया, यही आपां कंक्लूजन कढ़िया कि जिहड़े की है कॉम्बीनेशन दे विच अगर आप रजिस्टर्स लगाने तो उहदी जिहड़ा कॉम्बीनेशन होगा टोटल रजिस्टेंस है जिहड़ी थ्रू आउट दी सर्किट जिहड़ी टोटल रजिस्टेंस फ्लो कर रही है RS वो किहदे बराबर होगी इज इक्वल टू द इंडिविजुअल रजिस्टेंस जिहड़ी इंडिविजुअल रजिस्टेंस लग रही है R1 R2 R3 उन्हां दे सम दे बराबर होगी, ठीक है। तो वो की ग्रेटर दैन एनी इंडिविजुअल रजिस्टेंस उस जिहड़े इंडिविजुअल रजिस्टेंस ने उन्हां तो की है ग्रेटर होगी, उन्हां तो की ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ लग गई इन्नी, ठीक है। ये कॉम्बीनेशन तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इस दे टॉपिक के अकॉर्डिंग रिलेटेड ही तुहानूं न्यूमेरिकल्स बननगे फाइनल पेपर दे विच, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां न्यूमेरिकल देख लेने 12.7 एन इलैक्ट्रिक लैंप हुज रजिस्टेंस इज 20 ओम। हुण इलैक्ट्रिक लैंप है जिहदी आपां नूं रजिस्टेंस दित्ती हुई है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रजिस्टेंस। एक की कंडक्टर है जिहदी रजिस्टेंस की है 4 ओम है, ठीक है। बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 6 वोल्ट की की बैटरी है, ठीक है। कैलकुलेट दी टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हुण आपां टोटल रजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट देखने तो टोटल रजिस्टेंस आपां नूं पता सी कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ये 4 ओम है ये 20 ओम है तो कितना हो जाऊगा 20 प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 24 ओम। टोटल रजिस्टेंस इन्नी होगी थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। द करंट थ्रू आउट द सर्किट, हुण करंट थ्रू आउट द सर्किट देखना है तो टोटल रजिस्टेंस 24 है तो उत्थे आपां करंट देखांगे तो करंट कितना हुंदा V इज इक्वल टू IR, ठीक है। वोल्टेज कितनी दित्ती हुई है 6 वोल्ट। आई आपां फाइंड करनी है, रजिस्टेंस 24 ओम अपन दिता होया तो उत्थों आपां की करांगे आई दी वैल्यू फाइंड करांगे, ठीक है। आई दी वैल्यू फाइंड करांगे 6/24 तो कितना आ जाऊगा 1/4। 1/4 नूं करांगे तो 0.25 एम्पीयर के करंट आऊगा थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलैक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलैक्ट्रिकल लैंप देखांगे, फिर क्या कंडक्टर देखांगे। ठीक है, सल्यूशन देखो ये है पहला सर्किट डायग्राम, फिर ਇਹਦਾ ਉਹੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ R1 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਨੂੰ, R2 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ 4 ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ 24 ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਵੋਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਮਸ ਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਸਰਕਿਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਓਮਸ ਲੋ ਟੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਹੁਣ उन्होंने दोनों ते आपां की ओम्स लॉ सैपरेटली की करांगे अप्लाई करांगे। ठीक है, पहले दे उपर अगर लगाने तो उत्थे आपां नूं उहदी रेजिस्टेंस इलैक्ट्रिकल लैंप की रेजिस्टेंस 20 ओम दी हुई है। करंट थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहिंदा 0.25 एम्पीयर ही होगा। अगर इहदी वोल्टेज कड्डांगे तो 5 वोल्ट आऊगा। फिर कंडक्टर की देखांगे, कंडक्टर की आपां नूं रेजिस्टेंस 4 ओम दी हुई है। करंट थ्रू आउट दी सर्किट सेम है तो उत्थे आपां नूं वोल्टेज कितनी आ जाऊगी 1 वोल्ट। सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज़ combination of electric lamp and the conductor by a single and equivalent resistance। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਂਪ ਦਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ 6 ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टोटल जी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी सर्किट वो कितनी 6 वोल्ट दी हुई है। अक्रॉस दी बैटरी टर्मिनल विल कॉज दी करंट थ्रू आउट दी सर्किट भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है। रेजिस्टेंस आर ऑफ दिस इज इक्वल टू कितनी होगी। हुण आपां नूं करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस आपां कड्डांगे। रेजिस्टेंस कितनी होगी 24 ओम। तो इत्थों आपां नूं इहदा सीरीज़ कॉम्बीनेशन का की है पता चल गया कि हाँ अपना की है जिहड़ा रेजिस्टेंस कॉम्बीनेशन सी वो सही सीगा। दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ सर्किट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। इत्थों प्रूफ हो गया कि आपां जिहड़ा कीता सी पहला कि कंडक्टर ते इलैक्ट्रिकल लैंप जिहड़ा कि 4 ओम दा सी, ये 20 ओम दा सी, इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन R इज़ इक्वल टू 24। आपां दोबारा करंट ते कि वोल्टेज नूं करके देखिया तां भी उन्हां दा रेजिस्टेंस टोटल 24 ओम ही आई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि अपना कॉम्बीनेशन सही है, रेजिस्टेंस भी सही फ्लो कर रहा है उहदे विच। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट की क्वेश्चंस ने। ठीक है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट 5 ओम resistor 8 ohm 12 ohm resistors and a plug key and all are connected in series। देखो हुण आपां की डायग्राम ड्रॉ करनी है जिहदे विच आपां की 3 resistors का कॉम्बीनेशन सीरीज़ दे विच दिखाउणा है। ठीक है, 3 सेल्स की बैटरी लगी हुई है जिहदी वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो प्लग की इंसर्ट करनी है आप। ठीक है, ये डायग्राम बनावांगे सब तो पहले तो आप, फिर उस तो बाद सैकेंड नूमेरिकल यही है कि उही डायग्राम जी आप उपर बनाई है उस दा आप अगे सल्यूशन कढ़ना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर। देखो इस दे विच की नूमेरिकल दे विच तुहानूं दिता होया ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी रजिस्टर्स कि ईच दी वैल्यू हर एक सैल की वैल्यू कितनी दी हुई 2 वोल्ट दी हुई है। 5 ओम रजिस्टर्स, 8 ओम रजिस्टर्स, 12 ओम रजिस्टर एंड की है प्लग की ते कनैक्टेड इन सीरीज़, सारे के सीरीज़ के विच कनैक्ट करना। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम बना लेने। देखो पहली डायग्राम दे विच कितना दिता होया 5 ओम। नैक्सट डायग्राम नैक्सट रजिस्टर्स दे विच कितना दिता होया 8 ओम। हाँ जी, नैक्सट कितना दिता होया 12 ओम। ठीक है, नहीं सारी की सीरीज़ दे विच कनैक्ट नहीं। ठीक है, इत्थे आपां की बैटरी बनावांगे 3 सेल्स वाली बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव हर एक सैल की कितनी 2 वोल्ट दिता होया, हर एक सैल की वैल्यू 2 वोल्ट है। ठीक है, तो इत्थे प्लग की, इत्थे एमीटर। ठीक है,
हाँ जी ये डायग्राम है ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਰਾਅ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨ ਐਮੀਟਰ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦੀ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ 12 ਓਮ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਕੀ 12 ਓਮ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੋਲਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। इनू आप V3 मान लेंगे ठीक है। हम सब तो पहले आप की देखते हैं RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करांगे R1 R2 R3 ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक है 5 प्लस 8 प्लस 12 तो टोटल कितना हो जाए 25 ओम हो गया ठीक है। 12 टोटल अपनी कितनी होगी 25 ओम थ्रू आउट दी सर्किट जिन्नी रेजिस्टेंस लग रही है ठीक है इन्नी होगी। हुण आपां की करंट पता करना थ्रू आउट दी सर्किट कितना हो रहा ठीक है। हुण आपां नूं की किन्नी होगी टोटल वोल्टेज 2 + 2 + 2 6 वोल्ट है ठीक है। सर्किट दे विच V दी वैल्यू 6 वोल्ट है। I दी वैल्यू आपां फाइंड करनी है ठीक है। R दी वैल्यू थ्रू आउट दी सर्किट कितनी है 25 ओम तो इत्थे आपां की है ओम्स लॉ अप्लाई करांगे तो इत्थे आपां नूं की आई दी वैल्यू की है मिल जूगी ठीक है। 6/25 अगर आप करांगे तो 0.24 एम्पीयर इहदा की आंसर आ जाऊगा ठीक है। हाँ जी नैक्सट हुण आपां की करना है हुण आपां V3 अक्रॉस 12 ओम करनी सी ठीक है। हुण V3 फाइंड करना है आपां करंट थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहूगा 0.24 एम्पीयर। R3 दी वैल्यू आपां नूं पता है 12 ओम इत्थे आपां अप्लाई करांगे ओम्स लॉ R3 VI3 V I दी वैल्यू 0.24 12 ओम तो आंसर कितना आ जाऊगा हाँ जी अपनी वैल्यू आ जाएगी 2.88 वोल्ट ठीक है। V3 दे अक्रॉस 12 ओम दे अक्रॉस अपनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाऊगा 2.88 वोल्ट एक ही आंसर है। यही आप पता करना सी करंट की वैल्यू फाइंड की एमीटर की वैल्यू पता चल गई वोल्टमीटर की वैल्यू पता चल गई ठीक है जी। नैक्सट वीडियो के विच आपां करांगे रजिस्टर्स इन पैरलल कॉम्बीनेशन। अज आपां कीता सीरीज़ कॉम्बीनेशन का कल नूं आपां करांगे पैरलल कॉम्बीनेशन का ठीक है। आई होप कि अज की वीडियो के विच तुहानूं पैरलल सीरीज़ कॉम्बीनेशन जिहड़ा कि समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दे रिलेटेड ही तुहानूं फाइनल पेपर दे विच न्यूमेरिकल्स आने हैं ठीक है। थैंक यू अज लिए इन्ना ही कल नूं आपां नैक्सट टॉपिक करांगे।